अमृत कन्याएं दे दी। अमृत कन्याएं तो है ही नहीं है, नहीं है। इधर होगा, देखो राशि को पूछो, सब कोई ले जाते हो, मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज मुझे उसी पे बोलना है। Good afternoon to one and all present here. As it is rightly said by the author and editor Himanjali Shankar, that the point of literature is to challenge the status quo. She said, as a writer, I'm trying to tell a story, but I think it is important that whatever bothers me as a person also seep into the book. I don't think I make the choice to talk about sexuality, communal issues, or mental health. But there are just what we are increasingly aware of and bothered about. Therefore, when I choose what to write, these concerns naturally become integral. It's not necessarily about trying to get a message across readers. These issues are important, and it is crucial to sensitize readers simply through the different characters by showing how and what they are going through. One can make readers aware of differences. Most of the readers grow up only exposed to the mainstream. It is the task of literature to show one what exists apart from what you are usually exposed to. The Faculty Development Program, being organized by Amity School of Languages, aims to bring insightful minds together to examine and consider such literary works, which have had a far reaching impact on the society and the readers. These have also challenged the existing order of things, thereby revealing layers of possibilities and offering newer dimensions, perspectives to the status quo. According to the Hindu traditions, it is considered good to pray to Lord Ganesha and worship the god of fire before an auspicious occasion. So, as a religious zeal, lighting of the lamp and prarthana would commence today's event. Now, I would like to request the technical team to carry on with the Vandana. कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः I, Bhamini Mishra, along with my co-felicitator, Miss Mahi Singh, takes this noteworthy occasion to begin the Faculty Development Program based on challenging the status quo, Voices in Literary Studies, convened by our Professor Dr. Kumkum Ray. To find a hopeful prospect towards the topic, we are grateful to our Chancellor and Chairman, Dr. Asim K. Chauhan, the founding promoter of the Amity Education Group, Pro Vice Chancellor Professor Dr. Sunil Dhaneshwar, our team of faculty members who are a very special part of this event and who have made their valuable inputs with us to organize this event.
Mahi, please respond. Continue. Harmony, you can continue. Let me take this opportunity to introduce Professor Dr. Kumkum Ray, our esteemed Director of Amity School of Languages. Professor Dr. Kumkum Ray, Senior Cambridge Honours graduate from Lady Shri Ram College, Delhi University, was awarded the best thesis for her PhD degree on Henry Louis Derozio, the first Anglo-Indian nationalist poet. Ma'am is an educational social activist with 46 years of teaching experience. She is the member of the Area Advisory Board and Board of Studies of Amity University, Uttar Pradesh. She is guiding 8 PhD scholars and is external examiner of various universities. Professor Dr. Kumkum Ray is the founding member, professor, and director of Amity School of Languages. Amity University Lucknow campus in 2004, who drafted the course curriculum for English, communication skills, business communication for the value-added mandatory courses of Amity University, Uttar Pradesh. Her anthology, Breathe Free, Flow Free, published by Notion Press, is a reflection of challenging the status quo in literary narratives through poems. I would like to invite our dearest HY, who is an epitome of knowledge, dedication, and discipline, and after all, our inspiration, Professor Dr. Kumkum Ray. Thank you so much. A very good afternoon to our esteemed guest and expert speaker for today, Dr. Kusum Kamani, and Dr. Priya Khare, for having given us your valuable time. Thank you, dear students, for felicitating this program with your hard work and comparing. And thank you so much, my dear faculty members, who have always been the torchlight for our students and are always ready to move on, not only educating themselves, but also educating those around us. So, coming on to the topic, as I think all of us have read C.S. Lewis in childhood, and says literature adds to reality. It does not simply describe. It enriches the necessary competencies that daily life requires and provides. And in this respect, it irrigates the deserts that our lives have already become. If we carry this further to our Greek philosophers, Heraclitus said there is nothing permanent except change. So, in preserving the soul of literature but creating a new body, new thoughts have to come. Liberate writers, scholars of literature, students of literature, to liberate from inertia, mediocrity, and status quo. No change happens without disturbing the status quo. The idea that literature holds mirror to the society is as old as Plato's conception of imitation. And as society changes minute by minute in this VUCA world, so has our narrative, our literary compositions, our areas of research to change. The pen is unreservedly greater than a sword. And the power of the word, which has shaped civilizations, changed political scenarios, eradicated disparity and discrimination, have to be sharpened from time to time.
Literary studies in various languages have been instrumental in giving voice to the voiceless, because whatever is new does not find a very ready ground of acceptance. And for that gaining of ground for acceptance, one has to work hard. One has to grow over from inertia and strike with impacting narratives. One can cite umpteenth examples in literature which have now brought to fore so many types of literature: disability studies, ecocentrism, trauma studies, animal studies, post-colonial studies, Native American studies, historical concepts, feminine voices, the most recent being LGBT voices, and French literature, Ginsbergian literature. I mean, it can go on and on. But how come these voices could be echoed and brought to a platform of recognition? Our aim is not to sit back on these emerging areas, but to look at new areas of expression in literature. My second anthology, which is on way, Shades of Resilience, being published by Excella Books, deals with this, the literature during Corona, how we learned to face, how our world became different. There was little importance of money, but there was so much importance of natural oxygen breathing areas. There was so much importance giving to food. People were just confined to their homes, and we realized that we reconnected to our families, we reconnected to working with our hands, and also realized how little money was needed in order to survive. Also, there are far-reaching, innumerable voices at the grassroots, and therefore translation studies has come to the forefront, because the writers at the grassroots in various languages, there's so many languages and ways of pronunciation, the use of words, you know, हर तीन कोस पे बदले बानी, and how Awadhi changes from one state to the other, how Bhojpuri changes from one state to the other, and how even various dialects in Tamil, Telugu, Assamese, Burmese, we have so many. So these voices, which were written in their own language, were suppressed till a long time, and now with the NEP 2020, we have given and found an impetus for these unheard voices to surface. Also, not only from our own subcontinent, but also voices of children, voices of very, very natively knowledgeable people, and at a time when nature is going through change, our one planet, the Earth, is putting up so many challenges. We are pushed into looking at eco-criticisms, ecology, and the language of the trees and the birds. So even they have found a voice. And therefore, it has been our endeavor that we will not ponder on what has been written, what has been said. We will move ahead so that new narratives and new areas of research are brought forth to change the status quo. Literature is absolutely a very, very
important pillar of our lives. You hear folk tales, you hear myths, you read books, you get all your knowledge from there, and therefore there are layers and layers of possibility in areas of research, in new voices, and in new path breaking grounds. So let us break the status quo, move on, and with these, I thank our expert speaker for today, Ritu Khare, who's just joined us. Welcome, ma'am. And I'm so Thank delighted. you. I'm so delighted to have you, Ritu, and Dr. Kusum, who has taken out so much time for us. And I hope our participants are going to benefit from this. With these words, I thank you, Bhamani. Please take the moment forward. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind and encouraging words. You are an inspiration for all of us, and we have always learned so much from you. We thank you that you gave the opening remark for the 7 days faculty development program on challenging the status quo voices in literary studies. Ma'am, you are the wind beneath our wings. I would like to request the technical team to play the ASL Johnny video. আমার নিজেই চশমাই ভালো লাগে এসব ফুটান চশমা আমার ভালো লাগে Oh,
Please continue, Bhavani. He cannot be seen. Shraddha, I think Bhavani can continue instead of waiting. Ma'am, I would like to request everybody to please switch on their cameras so that we can click a photo. Thank you, everybody. Better than 1,000 days of diligence. Study is one day with a great teacher. दूर करे अज्ञान है, देकर ज्ञान प्रकाश। गुरु ही करते हैं Ma'am, संपन्नता का नाश। excuse me. ये चारों वेद Excuse me, ma'am. Will you take long? Shraddha, please respond, Mahi, hurry up, so that Dr. Kusum doesn't have to wait for long. Hurry up. with this. Because I was told an hour ago that I will speak 10 minutes, after 10 minutes. Yeah, so please, Okay. Mahi, Please, please I have, introduce. excuse me, don't mind, but I have another meeting. Okay? I can understand, I can understand. Sorry. Thank you. मैम हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया आप हम सबसे अपने विचार व्यक्त करें। I would like to invite Dr. Kusum Himani. Over to you, ma'am. Before I open my speech, I must agree that everybody's participation and knowledge was like, I am so overwhelmed, devastated. क्या आप लोग बोल रहे हैं, क्या गजब आप लोग का ज्ञान है और बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। मुझे कहा गया है कि मैं अपनी किसी किताब पर बोलूं, हाँ? तो is it correct or I can speak in general? बिल्कुल अपनी किताब पे बोलिए मैम, because that is it has come from your pen, and I'm sure there are some voices that you have brought out and we have not heard. Shraddha, should I speak in general about my books or should I speak about one particular book? Ma'am, it's up to you. Can speak about on any one book you can. One book at a time. Yes. Okay. Yes. But I can give reference of other book. Okay, Yes, sure, ma'am. Ma'am, you're welcome. Okay. Thank you. मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप सब विद्वत जन हैं और मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि मेरे सुनने वाले मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। इसलिए मैं अब अपनी बात कहती हूँ। आज मैं मुख्यतः अपना एक उपन्यास मेरा अभी छपा है, लाल बत्ती की अमृत कन्याएं। ये इसका फोटो दिखा दो। ये हमारे आप लोगों ने शायद गूगल में पढ़ा होगा, इसके फोटो दिखा दो कि ये विश्व में सबसे बड़ा चकला खाना बैंकॉक के बाद यही है। तो मैंने यहाँ हर महीने में 2 बार जाके यहाँ एक को स्टडी किया और मैंने ये लिखा है वहाँ की स्त्रियों के बारे में। वैसे भी मेरा सारा लेखन स्त्रियों के पक्षधर होता है और मैं स्त्रियों के बारे में ही लिखती हूँ। इसको लेके मुझे एक बार बुलाना भी आया कि आपके लावण्य देवी ने इतने पुरस्कार जीते, वो भी महिला ओरिएंटेड है, गाथा राम भतेरी भी महिलाओं पर है, जड़िया बाई भी महिलाओं पर है और ये सब महिलाओं पर है। क्यों? मेरा एक ही जवाब है मेरे श्रोताओं को। मैं ऐसा मानती हूँ कि महिलाओं को हमेशा पीछे की पंक्ति में रख दिया गया। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप सबके साथ मैं भी आगे आऊं और हम लोग सब आगे आकर काम करें।
मित्रों, आज मैं आपके सामने मेरा उपन्यास लाल बत्ती की अमृत कन्याएं, उसके ऊपर चर्चा करूंगी। आप उसकी आरंभ की 2 लाइनें सुन लीजिए तो आपको उसका जिस समझ में आ जाएगा। लाल बत्ती की अमृत कन्याएं अंतर सलीला के मानिंद समाज के अंतःकरण में बहकर उसका परिष्करण और परिमार्जन करती हैं और बदले में उससे मिले विष का नीलकंठ शिव की तरह पान कर उसे वे अमृत दान करती हैं। ये मैंने जो हमारे यहाँ लाल, ये जो जिनको हम वेश्या कह देते हैं, उनका दूसरा पक्ष क्या है उसकी मैं चर्चा कर रही हूँ। क्योंकि पुरुषों का समाज है तो वो उनको बनाता भी वही है और वो उन्हीं के विपक्ष में भी वही बोलता है। तो मेरी जो ये पुस्तक है लाल बत्ती की अमृत कन्याएं, ये मुख्यतः उन्हीं की व्यथा कथा की पुस्तक है और इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं समाज के इस तबके को सामने लाऊं और ये मेरे अपने उससे उपजे हुए हैं सारे अनुभव। मैंने वहाँ जा के ये सारी शोध की और मैं बहुत ही वहाँ के लोगों से मिलकर और वो हूँ। तो मित्रों, ये मेरा उपन्यास जो है ये मुख्यतः इसको मैंने छोटे अमृत कन्याओं को मैंने लिखा है कि सोनागाछी पर केंद्रित है और वहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि स्त्रियों की रोज रोज की प्रताड़ना, अपमान और हत्या जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंगों का चित्रण इसने लिखा है। जिस भाषाई कौशल और शिल्प दक्षता के साथ किया गया है वह देखते ही बनता है। पहला पन्ना खोलते ही उपन्यास, ये मेरे उन्होंने लिखा है, बहुत बड़े लेखक ने, एकांत ने। इसके जब एक पहला पन्ना खोलते ही उपन्यास किसी रोचक फिल्म की तरह हमारे सामने खुलता चला जाता है। यह बतरश शैली डॉक्टर कुसुम खेमानी का अपना निजी और विशिष्ट कौशल है जो पाठक को अंत तक बांधे रखता है। उपन्यास की कथा में सहारा देने वाले हाथों का खास संदर्भ नहीं है, बल्कि इन पतिता स्त्रियों द्वारा गिरकर खुद उठने और संभलने की कोशिशों का कलात्मक मंथन भी है। लावण्य देवी जड़ियाबाई और गाथा राम भतेरी जैसे उपन्यासों से गुजरने के बाद निसंदेह यह कहा जा सकता है कि यह भरा पूरा उपन्यास अगर किसी का हो सकता है तो एकांत जी का कहना है कि वो कुसुम खेमानी का ही हो सकता है। मित्रों, लाल बत्ती की अमृत कन्याओं पर लिखना बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि इसकी एक एक कहानी में इतना दर्द है कि आम तौर पे तो लोग रो पड़ते हैं इसको सुनकर। मैं आप सब से गुजारिश करूंगी कि आप लोग कहेंगे तो मैं पुस्तक आप लोगों को भेजूंगी, पर आप लोग इसे पढ़ें और आज के समाज का लेखा जोखा जानें। मैंने शुरू में यूं ही नहीं कह दिया है कि ये सोनागाछी की लाल बत्ती की अमृत कन्याएं अंतर सलीला की मानिंद, माने अंदर से जो बहता है पानी, समाज का अंतःकरण का परिष्करण करती हैं और परिमार्जन, और उससे मिले विष का पान करके वो मैं मानती हूँ कि वो शिव हो गई है। तो आप इसे उपन्यास को जब पढ़ेंगी तो आप महसूस करेंगी कि एक एक महिला कैसे कष्ट से गुजरती है। और इसकी खास बात यह है, ये महिलाएं किसी का सहारा नहीं ढूंढती हैं,
खुद ही खड़ी होती हैं और अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़ती हैं। ये एक बहुत बड़ी इसकी खास बात है, मैं मानती हूँ। और मेरे और उपन्यासों में भी ऐसी ही बात है, पर उसमें और लोग भी सहायता करने आए हैं। पर इसमें हर लड़की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हत्या हो गई है, पर और अभी आश्चर्यजनक रूप से जो वहाँ सबकी चहेती सबसे सुंदर लड़की थी, उसकी हत्या हो जाती है और लाल लाल पट्टी की अमृत कन्याओं के सोनागाछी में सिवाय वहाँ पानी से धोकर और उनको वहाँ पर आगे काम शुरू करते हैं, क्योंकि पेट भरना है। ये जो एक बात है, ये बहुत मर्मांतक है। दुख हमें भी होता है, उन्हें भी होता ही होगा, पर वो कहती है दुख करने का समय कहाँ है, हमें तो आगे बढ़ना है। अगर हम दुख को लेके बैठ जाएंगे तो फिर आगे का काम कैसे होगा। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था ये देखकर कि ये लोग कैसे लोग हैं जिनके दुख सुख व्यापता ही नहीं है किसी का। एक मिनट में वहाँ की सबसे प्रिय लड़की की हत्या हो जाती है और वहाँ का जीवन प्रवाह एक मिनट के लिए भी नहीं थमता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें हर क्षण आगामी क्षण की चिंता रहती है, जहाँ उनका 2 पैसे की वो कमाई करेंगे, अपने ग्राहक की कमाई करेंगे। एक मिनट, माफी। मित्रों, आपके आसपास भी आपके आसपास भी ऐसी अमृत कन्याएं होती होंगी जरूर। ये और बात है कि हम लोग आँख खोल के देखते नहीं हैं और उन्हें सिर्फ घृणा करते हैं, जबकि ये महिलाएं घृणा नहीं, सहानुभूति की पात्र है। माफ करें, खांसी, मौसम बदल रहा है तो खांसी हो गई है। मित्रों, मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगी। मेरे सारे उपन्यासों की फहरिस्त आपके पास गई हुई है, कहानियों की, और इसके हर कहानी और उपन्यास का मुख्य पात्र महिलाएं। कुल और ये सब से मेरा जीवंत परिचय हुआ है। सब मेरे अनुभव से उपजी हुई संतानें हैं मेरी, कोई भी कल्पना लोक से उतरी हुई नहीं है। तो इनके दर्द को भी मैंने समझा और देखा। अभी जो ये मेरे खांसी आई, ये खांसी तो थी ही, इसमें आँख में पानी आने से ये ज़्यादा गड़बड़ा गई, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो लाल बत्ती की अमृत कन्याएं हैं, उसमें एक ही संदेश है कि हम इन्हें विष कन्याएं नहीं समझें, ये अमृत कन्या है। ये आपकी समाज की गंदगी को पीकर समाज को परिष्कृत करती है। ये रिक्वेस्ट है मेरी सारे पढ़े लिखों से, पूरे समाज से। और मैंने वहाँ जाके महसूस किया है कि इनका दर्द बहुत घना है और हमारी अय्याशी इसके की तुलना में, इनकी तुलना में हम जैसा जीवन जीते हैं वो बहुत ऐशो आराम और प्रेम से भरा हुआ है। मित्रों, आइए हम सब मिलके इनके जीवन में झांकें और इनको एक सहानुभूति का हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं, इनके मरहम लगाएं घावों पर। तो मेरा ख्याल है आप महसूस कर पाएंगे इनकी पीड़ा को, जिनको मैंने अमृत कन्या कहा है और जिन्हें समाज विष कन्या मानता है। मेरा पक्का विश्वास है कि आप अगर इस किताब को पढ़ेंगी तो आप सब भी समाज की इस गंदगी को
यही मानेंगे कि समाज का परिष्करण करती है, ये गंदगी नहीं है अपने आप में। मित्रों, मैं यहाँ भेज भी दूंगी और आप सब से पुनः पुनः अनुरोध करती हूँ कि आप इन किताबों को पढ़ें और खुद न्याय करें कि क्या ये सच्ची हैं या मैंने कल्पना वायवीय रूप से एक भी मेरी महिला नहीं उतरी है, वो सारे मेरे अनुभव से उपजी हुई संतानें हैं, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इसलिए मित्रों, इनको आप सब दर्द से छुइएगा और दर्द से इन पे मलहम लगाकर इनके घावों से को जानिएगा, उड़ेदिएगा मत। मैं आपसे यही अनुरोध कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी सभा में मुझे समय दिया। आप सबको बहुत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। इति। मैम, आपका श्रद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबके लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपनी इस किताब के बारे में हम सभी को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Literature is where I go to explore the highest and lowest places in human society and in the human spirit, where I hope to find not absolute truth, but the truth of the tale, of the imagination, and of the heart. With these wonderful words by Salman Rushdie, I would like to introduce an interesting game of Guess the Author to you all. In this game, you all will be able to own certain quotes by famous authors, and you will have to guess the name of the quote's author. अभी आप सबके सामने हम कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करेंगे, उन पे कुछ फेमस ऑथर्स के कोट होंगे, तो आपको ये गेस करना होगा कि वो कोट किस ऑथर का है। Please repeat. I couldn't hear. Please repeat. यस मैम। मैम, हम लोग अभी हम कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करेंगे इसी मीटिंग में, और आपको उस पे कुछ कोट्स लिखे हुए दिखाई देंगे जो कि हम पढ़ के भी आपको बताएंगे। वो आपको गेस करना होगा कि ये किस ऑथर के कोट हैं, किस ऑथर का Oh लिखा my हुआ। God. The days are Yes. gone when I used to read a lot. Nowadays, I only write a lot. Okay, I will try. I will try. Please, you can verify this is not for the expert speakers, but for the participants. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. This is not for the speakers. This game is for the participants who have joined this event. Okay. Yes. But you can also enjoy this, ma'am. I will. I would request the technical team to. I would request the technical team to please present the slides, and this is for all the participants in this event. Please raise your hands. Then only you will be given a chance to speak. Ma'am, can I apologize because I have one meeting at Bharati Bhasha Parishad. Can I Yes, request ma'am. my You leave? don't have to request. You have given your contribution, ma'am. You can go ahead and join your meeting. We are Thank you. indebted Thank to you. you for your time. Thank, Thank you. thank you, you all. You all are such lovely, such educated and learned person that my whole morning is made, my day is made. Thank you. Thanks a lot. So here we start with the game. Guess the author. Next slide, please.
Just a minute. Okay, so the first quote is, "The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity." Any guesses? William Butler Yeats. Okay. Yes, that's the correct answer. The next is rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves had all too short a date. Yes, Fatima. William Shakespeare. Yes, you are right. Next slide, please. Thank you. Okay, so the next quote is, "In the room, women come and go talking of Michelangelo." Okay. Dr. Archana Gupta has raised her hand. Yes, ma'am. By T.S. Eliot, Love Song of J.F. Suffolk. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're right. Next slide, please. The next quote is, dignity and even holiness, too, sometimes are more questions of coat and waistcoat than some people imagine. Yes, Nidhi. It's Charles Dickens. Yes, yes, you're right. Next slide, please. Okay. So the next quote is, "Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait." Jay Lakshmi has raised her hand. It's John Milton. Yes, ma'am, you're right. Next slide, The please. next slide. There lies the port, the vessel puffs for sail. Here gloom the dark, broad sea. Yes, Pranjal, please answer. It's Alfred Lord Tennyson. Yes, you're right. Next slide, please. So the next quote is, "One cannot think well, love well, sleep well, if not dined well." Any guesses? Yes. Virginia Woolf. Yes. Yes, yes, you're right. You're absolutely right. Next slide, please. The next quote is, that piece of wonder now, saw Pando's hand, worked busily a day, and there she sang. Any guesses? Browning. Yes, you're right. It's by Robert Browning. Yes. Next slide, please. Okay. The next quote is, "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter." Any guesses?
John Keats, Ode on a Grecian Urn. Yes. Yes, you're right, you're right. Next slide, please. William Wordsworth. Yes, you're right. Okay, so everybody, all the participants have, made good guesses and the answers were correct, whosoever answered. Okay, so now we continue with the event. जहां झांसी की मनु उठा तलवार बनी थी लक्ष्मीबाई, उसी धरा पर आज की नारी फिर क्यों है सकुचाई। बहुत हो रहे जुल्म अब उन पर और बहुत आघात, अब क्यों सहे तू अत्याचार और क्यों दाबे तू मन में बात। तुमने तो है बहुत सहा, नहीं मिला बराबर का मान, मिला कदम अब पुरुषों से, बढ़ा नारी का सम्मान। याद करो उस नारी को जो लाई थी देश में आंधी, बनी देश की महिला मुखिया पहली इंदिरा गांधी। मान बढ़ाया जिसने देश का देकर अपना स्वर, कहते जिनको स्वर कोकिला नाम लता मंगेशकर। याद कर इन्हीं नारी को, बढ़ा अब इच्छा शक्ति, निकल आ पर्दे के बाहर, बन जा देश की प्रगति। With these inspiring lines, I would like to welcome Miss Ritu Priya Khare to enlighten us with some encouraging words. Miss Ritu Priya Khare is a poet, is a poetess, author, singer, social worker, a folk artist, and she is an event designer at President Telecom Women Welfare Organization, BSNL Maharashtra and Goa. She believes that if she was truly able to transform, she would be able to help others transform themselves. She has received the training of folk and classical songs from Sangeet Praveen Prayag Vishwavidyalaya, and her presence in social work ranges to many years. She has completed her master's in chemistry from Christchurch PG College. Now, I would like to hand over the mic to ma'am and request her to kindly share her views and thoughts with us. Ma'am, please continue. नमस्कार। अमिटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के लखनऊ चैप्टर द्वारा आयोजित ये बहुत ही खूबसूरत वेबिनार चल रहा है और मैं डॉक्टर कुमकुम रे का धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर कुसुम खेमानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही श्रद्धा श्रीवास्तव जी जो आयोजक है इस वेबिनार की, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे इस श्रेष्ठ वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए। भामिनी मिश्रा जी और सभी विद्वत जन और बहुत ही प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, लखनऊ मेरा मायका है। तो when this webinar came to me, I was so excited. IT कॉलेज से मैंने BSc किया था और आप लोग भी अमिटी में हैं और शाम में अवध के क्या कहना, इतना खूबसूरत है आपका लखनऊ, हमारा लखनऊ नवाबों का शहर है, बेगमों का शहर है। उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि रही है और अनेक नगरों में वास रहा, क्योंकि पिताजी ट्रांसलेबल जॉब में थे और मेरे विवाह के पश्चात मैंने देश विदेश में अनेक पोस्टिंग्स मेरी हुई। बहुत सारे कल्चर से जुड़ी, बहुत सारे सांस्कृतिक लोक कलाएं देखी, सीखी और आपको मैं बताते हुए गौरवान्वित हूँ कि मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें मेरी जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था जय जय गरवी गुजरात। मैं अहमदाबाद में रही हूँ 8 साल और ये कॉफी टेबल पुस्तक है हिंदी गीत और कविताओं की। और मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि इस पुस्तक का विमोचन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो इसमें गुजरात की गौरव गाथा, गुजरात की प्रगति गाथा लिखी है कविताओं के रूप में। बहुत सारी पुस्तकें निकली मेरी
और कुछ एमिनेंट पुस्तक के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगी। साथ ही मैं लोक गायिका भी हूँ। मैं भारत की सांस्कृतिक, खासकर उत्तर प्रदेश के जो लोक गीत हैं उसका मैं संरक्षण कर रही हूँ, संवर्धन कर रही हूँ, संप्रेषण कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी। हिंदी जो है हमारी उत्तर प्रदेश वालों की तो बहुत ही खास भाषा है। और मैंने एक अभी नई एक पुस्तक लिखी है जिसका कॉफी टेबल बुक के रूप में है, और ये आप देखिए उत्तर प्रदेश वासी शायद पहचान जाए, ये बनारस के घाट हैं, और इस पुस्तक का नाम है विकास की गंगा। तो हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये तो आप सभी को ज्ञात होगा कि गंगा नदी नहीं, एक माँ के रूप में है। इसका पौराणिक, सांस्कृतिक अनेक प्रकार से महत्व है। तो आज मैं आप लोगों को इस गंगा यात्रा पे ले चलती हूँ। मुझे समय का बताइएगा कि कितना टाइम है मेरे पास। मेरे ख्याल श्रद्धा जी ने बताया था अराउंड हाफ एन आवर। तो आइए Yes, आप ma'am. लोगों को एक जी तो आप लोगों को एक डिवाइन जर्नी पे ले चलते हैं अपनी गंगा यात्रा द्वारा। तो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का मार्ग पूर्ण सलिला माँ स्वरूपा गंगा ने प्रशस्त किया। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और गंगोत्री से गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो देखिए, मैंने इस गंगा के किनारे जो सांस्कृतिक विरासत है, 5 प्रदेशों में गंगा बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, स्वर्ग से अवतरित होती हैं, और गंगोत्री से गंगा सागर तक की जो यात्रा है, मैंने गीत और कविताओं के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं आपको बताते हुए बहुत ही आनंदित हूँ कि इस गंगा यात्रा को मैंने विश्व में अनेक स्थानों पर किया है। अभी रिसेंटली मैं 6 महीने अमेरिका में थी, तो कैलिफोर्निया, शिकागो, वहां पर भी इंडियन कम्युनिटीज द्वारा एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें गंगा यात्रा प्रस्तुत की, जिसमें मैं स्वच्छता अभियान के साथ भी जुड़ी हूँ, गंगा के स्वच्छता अभियान के साथ। बहुत लंबा एक इस पे कार्यक्रम किया जा सकता है, पर हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो इस कॉफी टेबल बुक जिसका जो विमोचन था वो माननीय गंगा मंत्री जी द्वारा किया गया था, माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा, बॉम्बे में। तो आइए, इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं। तो सर्वप्रथम गंगा अवतरित हो रही है स्वर्ग से, और हम माँ जी, गंगे नमामि 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 कृपा करणी दुख हरणी दयानी, गंगे नमामि 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 शिव जटाधारिणी, गंगाधर नमामि 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 गंगे नमामि 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 जगत कल्याणिनी, गंगा जल धारिणी धारिणी धारिणी, गंगे नमामि 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 गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः। नमो जानवी जानुपुत्री नमो नमः। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः। तो देखिए, गंगा जो है, इसका जो पौराणिक स्वरूप है, ये शिव जी की जटाओं से निकली थी। विष्णु पद से बह निकली और ब्रह्मलोक अवतरित हुई। भागीरथ प्रयास पाया तो यह वसुधा पर आन मिली। शिव जटाओं में बांधा संचित असंख्य सागर, जिसमें धरा किया उपकार शिवा ने, गंगा बह निकली जग में। पार्वती की हम जोली है, 3 लोक की वासी है। स्वर्ग धरा पाताल रहा हो, सबकी प्यास बुझाती है। गंगा अवतरण पौराणिक कथाओं में माँ गंगा के रूप में हुआ, और गंगा दशहरे के दिन कहते हैं गंगा मैया स्वर्ग से धरती पर आई। और कौन से दिन आई, देखिए, जेठ शुक्ल की दशम तिथि को माँ गंगा ने लिया अवतार। पतित पावन हर हर गंगे सजा हुआ दशहरा वार। कठिन तपस्या भागीरथ की पृथ्वी मिला गंग सिंगार। कल कल निनाद करती गंगा
उतरी शंकर जटाधार। धूप दीप नैवेद्य आरती पाप कटे हैं 10 प्रकार। पूजन अर्चन माँ का वंदन मिल जाते आशीष हजार। घाट घाट में मेले जुटते गांव गांव सजते त्योहार। दान पुण्य गंगा नाहन कर जीवन नैया होती पार। जीवन नैया होती पार। माँ गंगा जीवन दायिनी मोक्ष दायिनी है और हमारी सांस्कृतिक विरासत है। भारत की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से करीब करीब 60% आबादी गंगा पर ही तो आधारित है। तो देखिए गंगा का एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जो कल्याण से ली गई है। इसमें माँ गंगा को श्वेत वस्त्र धारण करके एक हाथ में गंगा जली, एक हाथ में श्वेत कमल और मगर पर विराजमान है। तो माँ स्वरूपा है गंगा। और देखिए मैंने स्पेशली एक गंगा का पेंडेंट भी पहना हुआ है जो लकड़ी के खिलौने बनारस में बनते हैं, उसी से बनी हुई माँ गंगा है। तो सदियों से अविरल गंगा भारत में बह रही है, भारत की देश को पवित्र कर रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गंगा पर इतना क्यों लिखा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि 4 पीढ़ियों से गंगा हमारे रक्त में प्रवाहित हो रही है। हमारे परदादा राय बहादुर श्री गंगा प्रसाद वर्मा जी का जन्म एवं कर्म भूमि गंगा के कछार रहे और हमारे बाबा श्री कैलाश नंदन प्रसाद और माँ श्रीमती सरिता वर्मा। तो देखिए सरिता मेरी माँ का नाम, मेरे ग्रैंडफादर का नाम कैलाश नंदन और ग्रेट ग्रैंडफादर गंगा प्रसाद वर्मा। तो देखिए गंगा किस प्रकार से बहती हुई प्रवाहित होती ही मेरे रूप में आई, चौथे जनरेशन में आई। तो माँ सरिता वर्मा के कलकल बहते आशीष से साहित्य संगीत कला की त्रिवेणी मन की गंगा को अविरल प्रवाहित करती रही और गंगा किनारे मेरा जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, मेरा विवाह, मेरा मातृत्व। निर्मल गंगा की पावन धार हमेशा मन को रस रंजित करती रही है और ये कवधारा काव्य धारा अब गंगा की धार में मिलकर इस पुस्तक में समाहित हुई है। तो गंगा एक भारत की सबसे प्यारी और सबसे पवित्र नदी है। और आइए जैसे जैसे गंगा के किनारे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं गुलमोहर का एक वृक्ष लगा है और जेठ की तपती दोपहरी में गुलमोहर खिल रहे हैं। तो देखिए मैंने प्रश्न किया, ए गुलमोहर, ग्रीष्म की तपती दोपहर में जेठ की जलती झुलस में गंगा तट पर खड़े तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो, खिलखिला रहे हो, लाल रंग बिखरा रहे हो और खुश हो गंगा की लहरों में गुल की मोहरें लुटा रहे हो। गुलमोहर मुस्कुराया और बोला, मेरे तन और पंखुड़ियों में गंगा जी का जल है और जड़ को गंगा की पवित्र मिट्टी का संबल है, इसीलिए मैं मुस्कुराता हूँ और गुल की मोहरें गंगा मैया पर अर्पित कर गंगा मैया का उपकार चुकाता हूँ। तो गंगा के किनारे जो फ्लोरा एंड फौना है उसको भी मैंने कवर किया है। गंगा तट पर एक वट वृक्ष लगा है यानी बरगद का पेड़ जो बहुत ही पुराना है। तो देखिए हमें अपने जो लोक त्योहार हैं, जो गंगा के किनारे लोक संस्कृति है, लोक गीत हैं, लोक कलाएं हैं, लोक त्योहार है, लोक पर्व हैं, उनका भी संरक्षण और संवर्धन करना है। क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति अगर पक्की होगी, अगर उसको हमेशा अविरल रहेगी तो वो देश हमेशा प्रगति करेगा। और भारत के तो क्या कहने। तो गंगा तट पर एक वट वृक्ष लगा है और ये पेंटिंग बनी हुई है जो राष्ट्रपति भवन में लगी है मधुबनी शैली में। तो गंगा तट वट वृक्ष विशाल देता संबल छत्र छायाएं, मानुष पशु और पंछी जेठ दोपहरी में सस्ताएं। बाबा की जमती चौपालें दादी रामायण बाची जाएं और बहु बेटियों संग झूला कजरी पोते पोतियों की शालाएं। बड़ बावस को बड़भागी बन सावित्री का सौभाग्य बढ़ाएं, कच्चे सूत बड़गुले पूजती सुहागिन करती परिक्रमाएं। बहुत लंबी कविता है, मैं कुछ कुछ भाग आपको सुना रही हूँ। तो गंगा जो है देव प्रयाग पांचों प्रयाग से एक बड़ी नदी के रूप में हरिद्वार में चल आती है, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए प्लेन्स में आ जाती है उत्तर प्रदेश के और संगम होता है गंगा का प्रयागराज में। तो एक गंगा है एक जमुना है, दोनों पुत्र हिमालय की, पौराणिक पावन नदियां हैं देश मेरे देवालय की। गंगोत्री जमुनोत्री शिखर से दोनों सखियां उतरी हैं, लंबी विकट डगर बल खाती ये प्रयाग आ मिलती हैं। और गंगा में प्रयागराज में
कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला में मैंने बड़ी साइंटिफिक स्टडी करी है, बहुत गूगल पे स्टडी करी, मैंने देश विदेश गई, जहां भी मैं गंगा के, मुझे गंगा ही हर जगह गंगा का स्वरूप मिलता रहा। कोई गंगा के मेले में गंगा की मूर्ति मिली, तो कभी गंगा से बनी हुई साड़ी मिली, पेंटेड साड़ी मिली, हर जगह गंगा में हो रही थी मैं। तो ये मैंने रिसर्च किया कि गंगा जल इतना पवित्र क्यों होता है। तो जो मुझे समझ में आया उसमें, जब कुंभ क्यों लगता है और कहते हैं कि कुंभ में नहाइए तो अमृत आप अपना उसकी पाप की मुक्ति हो जाती है। तो जो साइंटिफिक रीजन जो मुझे समझ में आया पढ़ने के बाद, कि वो कॉन्स्टिलेशन जब इस टाइप का होता है, जब कुंभ का शाही स्नान होता है, उस टाइम बहुत हाई एनर्जी निकलती है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है, और पानी उस पर्टिकुलर स्पेस पे, जैसे प्रयागराज में उस पर्टिकुलर डे पर बहुत हाई एनर्जी रहेगी, और वो हाई एनर्जी नदी यानी गंगा नदी उसको बिल्कुल जल्दी एब्जॉर्ब करती है, और अगर आप उसमें स्नान करते हैं तो आपका पूरा बॉडी एनर्जाइज हो जाता है। और उसी पर्टिकुलर डे पे स्नान करने के लिए कुंभ के मेले लगाए जाते हैं। तो आइए हम महासंगम देखते हैं, कुंभ के मेले में क्या संगम हो रहा है। आस्था विश्वास उल्लास का संगम, धर्म कर्म मोक्ष का संगम, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, साधु संत महात्मा का संगम, क्षीर अमृत नीर का संगम, और धर्म विज्ञान और विकास का संगम। जब हमारे धार्मिक लोग मिलते हैं, विज्ञान के बारे में बात करते हैं, विज्ञान और धर्म को जोड़ा जाता है, तो उससे ही विकास होता है। तो हमारे पौराणिक कुंभ मेले का जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, और बड़े लोग स्टडी करने आते हैं विदेशों से कि इतना बढ़िया आयोजन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए इस महाकुंभ को, हमारी संस्कृति को बहुत बहुत प्रणाम है। तो आइए, गंगा के किनारे आरती हो रही है, जहाँ आजकल हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस सब जगह आरती होती है। तो मैं गंगा तट पे आपको ले चलती हूँ, कानपुर में। गंगा आरती उतारने हम भी आए हैं, मैया आरती उतारने हम भी आए हैं। शंख नगाड़े घंटी गूंजे, गूंज रहे घड़ियाल माँ, झांझ नजीरे ढोलक बाजे, बाज रहे करताल माँ। तोहरी आरती उतारने हम भी आए हैं। माँ गंगा की आरती हो रही है, तो पवित्र संगम पर होती है, बहुत जगह आरती होती है, और बड़ा ही आनंददायक क्षण होता है। और गंगा मैया प्रवाहित होते होते ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ रही है, जहाँ एक त्योहार होता है जिसमें गंगा माँ को एक तट से दूसरे तट तक चुनरी चढ़ाई जाती है, और उसको कहते हैं पूर्वी भाषा में पियरी। तो आइए थोड़ी भाषा का चेंज करते हैं, और हम अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा की ओर चलते हैं। और गंगा मैया को मैं एक चुनरी चढ़ा रही हूँ जो पचरंगी है, और अनोखी चुनरी है, जिसमें प्रेम, एकता, सौहार्द, खुशी और स्वच्छता के रंग। तो भोजपुरी शैली में ये गीत सुनिए कि गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, पचरंगी सजी चुनरिया, अपने हाथों तो है सजइबे। गंगा मैया तो है पियर चढ़इबे, पहला रंग प्रेम का सजइबे, नेह प्रीत के धागे बुनइबे, प्यार के रंग में सजइबे। गंगा मैया तो है पियर चढ़इबे। तो गंगा मैया को एकता, सौहार्द, खुशी, स्वच्छता और प्रेम के रंग से रंगते हैं इस पचरंगी चुनरी द्वारा। इस पुस्तक में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। कभी रूबरू आपके समक्ष ये प्रस्तुत जरूर करना चाहूंगी कार्यक्रम। और गंगा मैया संगम से आगे बढ़ती हैं और पहुंचती हैं काशी, जो कि काशी विश्वनाथ की नगरी, गौरवशाली और संस्कारवान, सौहार्द और अध्यात्म की डगरी है, परंपराओं का होता है सम्मान। यहाँ मिर्जा गालिब, बुद्ध, नीम कबीर, हरिप्रसाद चौरसिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महामना मदन मोहन मालवीय की नगरी है। तो विश्व की प्राचीनतम नगरी है। इट इज सेड when there was no Rome, when there was no Egypt, Kashi was there. So Kashi is the oldest living city of the world. We are very proud to have Kashi in India. तो काशी को कहते हैं कि भगवान शिव का निवास भी है, और उनके त्रिशूल पर बसती है। तो जिसके घट घट
बस रस बसता है वो तो रहा बनारस है। अब काशी का नया नाम बनारस। और घाट घाट जहाँ अमृत छलका वो तो रहा बनारस है। और विविध विविध पनवाड़ी इसके स्वाद अनूठा पाया है। एक गिलोरी जो खा ले वो पहरो फिर हर्षाया है। प्रेम भाव जहाँ खुलकर मिलता जीवन चलता समरस है। गंगा नदी जहाँ सजती है वो तो रहा बनारस है। तो बहुत सारे बनारस की बातें मैंने इस पुस्तक में ली हैं। और चलते हैं मिर्जापुर की ओर। गंगा के किनारे बसा एक शहर जहां पर हमारे लोकगीत कजरी का उद्भव हुआ। कजरी यानी काले काले बादलों सावन में गाए जाने वाले गीत। तो आइए 2 लाइन सुनते हैं। आवरी सखिया आइब है सावन में झूला झूलैबे। बादल गरजत बिजुलिया चमकत ननी ननी बूंदिया झरैबे। सावन में झूला झूलैबे। काशी में बाबा विश्वनाथ अलौकिक होली खेल रहे हैं। आइए इस गीतों में ही फिर समझाती हूँ। आशा है आप लोग को आनंद आ रहा होगा। तो भोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरात गंगा घाट पे। वो काशी घाट पे काशी घाट में धूम मची है। फागुन में मस्ती बनी है। भंग की तरंग चढ़ी है। मन में उमंग बनी है। झूमे गौरा जी के साथ बोले काशी विश्वनाथ गंगा घाट पे। तो ये अलौकिक होली देखने लोग अनेक देवी देवता बनारस पधारते हैं, काशी पधारते हैं। और बनारस की खिलौने बड़े फेमस हैं। देखिए गंगा मैया और लकड़ी के सुंदर खिलौने बनते हैं यहाँ। तो उसमें कविता है मेरी की यादों की पोटली खुल गई बचपन फिर से खिलखिलाने लगा। और रंग बिरंगे बनारसी खिलौने देख मन अतीत झरोखों में जाने लगा। काठ के घोड़े पर सवारी कर टिक टिक घोड़ा हिनहिनाने लगा। और पूंछ मरोड़ कर रेड़ लगाई तो हवाई घोड़ा आसमान छूने लगा। काठ की रंगीन नैया में बैठ मन गंगा के पार जाने लगा। और दूर कहीं मेरे बचपन का गांव आज बहुत याद आने लगा। आज बहुत याद आने लगा। तो अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। 2-4 गीत कविताएं हैं गंगा की। तो गंगा मैया की एक परिकल्पना है जो सच में हो भी रही है कि काशी में गंगा मैया अत्यंत प्रसन्न है। देखिए कैसे। लहर लहराए रे गीत खुशी के गाए। काशी घाट पे गंगा मैया मुस्काए। विश्वनाथ की रहे कृपा सिर गंगा धार सुहाए। स्वच्छ धवल निर्मल गंगा युग युग की कथा सुनाए। लहर लहराए रे गीत खुशी के गाए। गंगा जमनी तहजीबों से नवाशा जग जाए। प्रेम भाव की लहरें बहती नव संदेशा लाए। लहर लहराए रे गीत खुशी के गाए। और काशी में ही देव दिवाली का त्योहार है। कार्तिक की पूनम तिथि पावन घाट घाट पर दीप सिंगार। जगमग जगमग दीपक जगमग देव दिवाली सरित विहार। अगर आपने देव दिवाली काशी की ना देखी हो तो कार्तिक में अवश्य जाइए और दीपदान करिए और देव दिवाली का आनंद लीजिए जहां देवों के देव महादेव को आरती करने सारे देवता आए हैं। तो हम क्योटो से काशी की कल्पना कर रहे हैं कि क्योटो जैसा काशी को डेवलप करेंगे, पारंपरिक और आधुनिक। तो उगते सूरज का देश कहलाता जापान और सबसे विकसित देश को भारत का परिणाम। क्योटो से काशी तक अब विकास की तान, आधुनिकता के संग संस्कृति का संगम बना महान। काशी में महा आरती और विकास की तान, स्वच्छ बहे गंगा सदा बना रहे अभिमान। और दिल्ली से काशी तक तकनीकी सौगात, बुलेट ट्रेन से गति मिले सिमटे दिन और रात। और बुद्ध के हाथों कमल शांति रूप पैगाम, विकासवाद से है मिली देश को नई पहचान। तो हमारा देश जो है
विस्तारवाद की नीति न अपनाते हुए विकासवाद की नीति अपना रहा है और विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। और गंगा मैया प्रवाहित होते हुए पहुंच चुकी है बिहार, जहां छठी माई का गीत मैं सुनाऊंगी। छठी एक बहुत बड़ा पर्व होता है बिहार का, और ये मैंने गोवा के गवर्नर हाउस में डॉक्टर मृदुला सिन्हा जब गवर्नर थी उनको सुनाया और पूरी गंगा यात्रा उनके समक्ष प्रस्तुत की तो बड़ा आशीर्वाद मिला। तो देखिए हम अपने परंपराएं और त्योहार किस तरह संजो रहे हैं इस गीत में। आवेरी सखिया आइबे हो छठी माई पूजन जइबे, कार्तिक मास में सूर्य पूजइबे, गंगा तीर चल आइबे, छठी माई पूजन जइबे। तो छठ माई के 5 दिन का बहुत सुंदर वर्णन है इस गीत में, कभी डिटेल में सुनाऊंगी। और गंगा मैया प्रवाहित होते बंगाल पहुंची है, जहां पर माझी ये गीत सुनिए। हो रे हैया हो रे हैया, ला 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 ला, हो रे हैया हो रे हैया। आज गंगा मैया से तलबा तलैया से सोनल मछरिया ले आव रे सजना मछरिया ले आव। गंगा किनारे लगे मेरा बजरिया, दिलवा दे हमका तू लाल चुनरिया, लाल चुनरिया से सोनल किरनिया से ओढ़ू तो नजर उतार रे, ओढ़ू तो नजर उतार। गंगा मैया गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं, सारे तीर्थ बारंबार और गंगा सागर एक बार। तो शरद पूर्णिमा रात सजी है, धवल चंद्रिका खिली हुई है, गंगा लहरें झिलमिल करती चुनर रुपहली चढ़ी हुई है। और गंगा जो है इस प्रकार गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं, भारत की भूमि को शस्य श्यामल करती हुई। और इस गंगा माँ को शस्य श्यामल रखना, अविरल रखना, आइए हम सब इस गीत से, अंतिम गीत है, सौगंध खाते हैं। देखिए ये पेंटिंग एक अहमदाबाद के पेंटर द्वारा बनाई गई है, जिसमें एक स्त्री है जो गंगा है, वाटर साइकिल भी दिख रही है और गंगा यात्रा भी दिख रही है। आइए हम सब मिलकर एक सौगंध उठाते हैं। राग भोपाली पर बेस्ड ये गंगा की सौगंध गीत है, अंतिम है। युगों युगों से बहती गंगा हम सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। और इसी गीत को गाते गाते हॉलीवुड की मुझे एक डायरेक्टर मिली थी, तो मैंने उसके लिए थोड़ा ट्रांसलेट भी किया। गंगा फ्लो इज टाइमलेस, दैट्स व्हाट पीपल से, गंगा will be clean again, let's take a note today। युवा वृद्ध और बालक सब हिल मिलकर कदम बढ़ाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। Young old and children together all will say, गंगा will be clean again, let's take a note today। गंगोत्री से गंगा सागर अविरल सरित बहाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। बोलो हर हर गंगे। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, आपने गंगा यात्रा सुनी, बहुत शॉर्ट में मैंने सुनाई है, और आशा है इस गंगा यात्रा द्वारा आपको भारतीय सांस्कृतिक प्रवाह समझ में आया होगा। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा में 5 प्रदेश कवर किए हैं, और हम सब गंगा को माँ स्वरूप मानते हुए स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे, प्रण लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमिटी, श्रद्धा और सारे स्टूडेंट्स एंड ऑल विद्वत जन, धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for your illuminating words. We truly appreciate your professionalism for the points you made. Thank you so much for sharing your expertise with us. Thank you so much, ma'am, and you have a really beautiful smile and voice. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. It was our utmost privilege to hear two eminent speakers like Dr. Kusum Khemani and Dr. Ritu Priya Khare. But the webinar won't serve its purpose if the audience would be in doubt and confusion. We are opening the platform for everyone to clarify everybody's doubts and see
if our audience has something to say. You may raise your hand or write in the chat box in order to get an opportunity to speak. The stage is all yours. As Shraddha told me, are there any questions for me from any person, any student or anybody? Yes, Pranjal, you may speak. Ma'am, as you expressed your thoughts on Ganga, I would like to ask you that what has become your biggest source of motivation for like choosing this as the motive? Sorry, I got a little disconnected. Please, is there any question for me? Ma'am, I wanted to ask that you have really shared great insights about like how to maintain cleanliness and about Ganga. So, what was that particular point that motivated you to work on this particular motion? I would like to know that. Thank you. Okay, as I told you, I was born near Ganga. I was raised near Ganga. All my education from Kanpur and various cities around Ganga. And I did my Sangeet Praveen from Prayag Vishwavidyalaya, Sangeet Vishwavidyalaya, that is also on the banks of Prayagraj. As again I will like to narrate कि मेरे जो great grandfather थे उनका नाम गंगा प्रसाद वर्मा, मेरे grandfather कैलाश नंदन प्रसाद, my mother, my father Krishna Kant, and my mother was Sarita Verma. So I had a very divine feelings when I was doing this project. The inspiration was Ganga itself. The inspiration was Ganga Putra, Narendra Modi ji. What he was doing in cleaning Ganga, उनका जो स्वच्छता अभियान, गंगा का स्वच्छता अभियान काशी में, कानपुर में, so it really was, I was so inspired by his motivational work. What we are seeing right now कि काशी में किस प्रकार से कॉरिडोर बन गया है, किस प्रकार से गंगा स्वच्छ हो गई है, और मैंने बहुत स्टडी किया, और उस आपको विश्वास नहीं होगा कि जो ये मैंने स्टडी कर रही थी तो 2-3 साल मुझे पूरा रिसर्च वर्क में लगे, और मोटिवेशन ये था कि गंगा एक माँ के रूप में, मेरी माँ का नाम सरिता है, तो मुझे एक माँ के रूप में गंगा दिख रही थी हर जगह, सोते जागते में गंगा, और मुझे डिवाइन इस तरह से सब हर जगह गंगा ही दिख रही थी। जैसा मैंने जिक्र किया कि मेले में जा रहे हैं तो वहां बनारस के स्टॉल में गंगा की मूर्ति मिली, कहीं मेले में जा रहे हैं तो गंगा से पूरी पेंटेड साड़ी मिली मुझको, तो और बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो गंगा पर काम कर रही हैं। तो जब आप जुनून आपको होता है तो आई थिंक हर जगह देश विदेश में, मैं अभी अमेरिका में भी थी तो वहां पे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुई जो गंगा स्वच्छता के अभियान के साथ बहुत फंड्स भी इकट्ठे कर रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी डिवाइन फीलिंग व्हिच आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मुझे गाने जो मैंने काशी विश्वनाथ का जो गीत लिखा है वो पूरे स्वप्न में आया, और सुबह सुबह मैंने पूरा गीत विद ट्यूनिंग लिख दिया। तो एक जैसा कि डॉक्टर मृदुला सिन्हा जो गवर्नर थी गोवा में, उन्होंने मुझको एक बड़ा इंस्पिरेशन वर्ड्स बोले कि बेटा मैं भी गंगा पे लिखना चाहती थी, परंतु वही लिख पाया जिसके ऊपर माँ गंगा का आशीर्वाद हुआ। तो मैं ये फील करती हूँ कि माँ गंगा का मुझ पर आशीर्वाद रहा, तभी मैं लिख पाई, इस कार्य को कर पाई। बहुत बड़ा कार्य हो गया है, और मैं कम से कम 100-200 जगह इसको प्रस्तुत कर चुकी हूँ पूरे विश्व में, और आगे भी करती रहूंगी, और जरूर चाहूंगी कि आपके बीच में आके, हमेशा मैं ब्लू ड्रेसअप रहती हूँ और गंगा को स्वच्छ करने का अभियान चला रही हूँ अपनी लेखनी द्वारा। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच मैम। As we all know that without feedback, the process of communication is not complete. I would request you all to give the feedback which is shared with you through WhatsApp in priority of your time.
The links are also shared in the chat box. Your feedback makes us feel that whatever we wanted to communicate in the session reached to you all, and hence our communication process complete. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Gurve Namah. Today, I would like to offer my sincere gratitude to all the teachers present here on the occasion. You all don't know that you present gods and goddesses on earth. You all are framing the mindset, conquering countries, doing inventions, working in social groups, and ruling the nation indirectly. It is a quick reminder to you all that teachers who support us emotionally, build us gradually, and strengthen our mentality have the highest positions in our hearts. So here we come to an end and would like to welcome Dr. Deepshika Srivastava to give the vote of thanks. Thank you, Mahi. And sorry, participants, as I'm not able to switch on my camera because of some technical glitch. So, excellence is a continuous process and not an accident. Perhaps with this thought in our minds, we as teachers always strive for excellence and knowledge. And having planned this faculty development program on challenging the status quo, Voices in Literary Studies is just a step towards structuring our own path of progress. Now, I take this opportunity to thank Dr. Kusum Khemani ji, whose humility I believe must have impressed us all. Ma'am, though not here in the meeting, we would like to extend a heartfelt gratefulness on behalf of Amity School of Languages. Her views expressed in her book, Lavanya Devi, should inspire one and all present here. And I believe that we'll try to imbibe all your thoughts to treat such women amongst us. Thank you so much, ma'am. I would also like to extend my thankfulness to Ms. Ritu Priyaji, whose keen insights has left a remarkable imprint on our minds. Ma'am, we promise to do our bit towards the noble cause laid by you. I would also like to thank our very own, the epitome of knowledge, Professor Dr. Kumkum Ray, without whose guidance and support this faculty development program would not have been organized. Thank you so much, ma'am, for being our torchbearer. Now, I thank all my faculty members who have been a part of the FDP today. Hope you continue with the same enthusiasm. Last but not the least, I thank all my student coordinators who stand together to support us as the pillars of Amity School of Languages. Thank you so much, everybody. Thank you. Over to you, Mahi. Stay tuned with us tomorrow, that is 26 April 2022. We have Dr. Sandeep Awasthi, who is well-known author, research guide, film writer, and chairperson of International Literary Association, and Dr. Prasad Golanpalli, who is Gandhian scholar and managing trustee of Gandhi King Foundation, as our eminent speakers. I would like to request everybody to please open their camera for a picture.
Thank you to everybody for joining this webinar, this event. And now we would like to end the session. Thank you for your valuable time. And I would also request everybody to kindly join tomorrow also and stay tuned with us at 2:30 p.m.